Good morning everyone. This is Abhishek and today in this video we are going to study about chain of markets. Chain of markets. In previous video I have told you about types of market that we found in our neighborhood. It can be a weekly market, it can be individual shop, it can be a shopping complex, it can be a mall or any hawker stall. Okay, we visit those shops or markets to buy our daily uses things. Okay, we have studied. You have a picture here over here and you can see a story in this. A story is mentioned in this, like these two sister, one is Kavita and other is Sujata. They are visiting to shopping complex. Looks in shopping complex like malls are well furnished and they are very beautiful in appearance. Okay, so people used to go there for enjoyment purpose also and buying purpose also. So they are visiting the mall for both the purposes. Okay, they were enjoying the beauty of the mall and also they wanted to buy something from the mall. Okay, as we do also, we also go in the mall just to click some photos and after returning while returning we buy something. Okay, so that we can prevent ourselves from being embarrassed. If you go to a mall and don't buy something, so the mall employees see you as how cheap he comes to market and don't buy anything. So it is a kind of embarrassing moment. Okay, so just to avoid those, we buy something. So these girls also wanted to buy something and they entered into a ready-made shop. They entered into a branded ready-made shop where guard wanted them to stop but he could not. Okay, the guard wanted them to stop but he could not. Why? Because he knew that these girls cannot afford buying a ready-made shop from this stall or this shop. Okay, because it was a branded ready-made clothes shop, but they entered this, saw few clothes, and then after when they seen the price tag of those clothes, their eye remains opened. They saw what they saw, that each and every means the minimum price of a cloth was 3,000. Okay, so they believe that it is almost 5 times of the weekly market price. So Sujata said that let's go, I will take you to the another shop where we can buy good quality ready-made clothes at more reasonable, means more cheaper cost than this. Okay, so this was the story of this mall. Now we'll start the chain of market. Chain of market. So let's see the chain. First I'll make you learn. Okay, okay, we need to go to market. Why? Just to buy things that we needed at our daily uses, in our daily uses. Got it? So हम मार्केट में जाते हैं क्या खरीदने के लिए? सामान खरीदने के लिए. तो जो भी सामान हम खरीदते हैं वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस होता है. वो ऐसा तो नहीं है कि वो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको प्रोड्यूस किया जाता है, उसको प्रोसेस्ड किया जाता है, उसके बाद से वो मार्केट में अवेलेबल होता है. ठीक है, तो मार्केट में अवेलेबल होने से पहले उसकी जर्नी क्या होती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले गुड्स, जो हमारी ज़रूरत की गुड्स है वो कितनी टाइप्स की होंगी? दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. पहला तो अगर हम उसे ब्रॉडली बांटे
तो कुछ गुड्स जो होती हैं हमारे डेली यूज़ की वो फार्म गुड्स होती हैं, फार्म गुड्स, ठीक है। और कुछ जो होती हैं वो फैक्ट्री से प्रोड्यूस होती हैं, जैसे प्लास्टिक की जो भी हमारे एसेसरीज़ हैं, फाइबर का एसेसरीज़ जो है घर में हमारा ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। बुक्स वगैरह हैं वो सब कहाँ बनती हैं, फैक्ट्रीज़ में बनती हैं, ठीक है। बुक्स का मतलब जो भी पेपर वगैरह होता है वो कहाँ बनता है, फैक्ट्री में। और फार्मिंग गुड्स कौन से होते हैं, जो घरेलू हम खाना वगैरह बनाने में किचन में यूज करते हैं, जैसे कि दाल, चावल, चीनी, वेजिटेबल्स, ये सब क्या है, फार्म गुड्स हैं। ये हमारे नेबरहुड के या फिर हमारे वीकली मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। इससे पहले कि इनकी जर्नी क्या होती है इसके बारे में हमें पढ़ना है और यही चेन हमें जानना है। तो ये गुड्स कितने तरीके के होते हैं, एक तो फार्म गुड्स होता है और एक फैक्ट्री गुड्स होता है। जो फार्म गुड्स कौन होगा, जो जिसका प्रोडक्शन खेतों में या फिर एपीकल्चर या डेयरी फार्म से होता है, जिसमें कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर जुड़ा हुआ होता है, उसे हम फार्म गुड्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, पनीर, दूध से बने हुए जो भी मटेरियल हैं, चॉकलेट्स वगैरह तो फैक्ट्री में जाके बनेंगे ना, वो तो फैक्ट्री गुड्स हो गए। लेकिन फार्म गुड्स दूध, पनीर वगैरह हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, चावल, दाल, ठीक है। और फैक्ट्री गुड जो कि अदर देन फार्म गुड्स आर फैक्ट्री गुड, फार्म गुड्स से जो अलग होते हैं उन्हें फैक्ट्री गुड कहा जाता है, ठीक है। तो ये मार्केट में अवेलेबल कैसे होते हैं, क्या हम इन सामान को, सब्जी हमें ख़रीदना होता है तो क्या हम सीधे खेत में पहुंचते हैं सब्जी खरीदने के लिए या मार्केट में पहुंचते हैं, पहले ये बताओ आप हमें। हम मार्केट में पहुंचते हैं ना, लेकिन सब्जी उगती कहाँ पे है, खेतों में उगती है। चावल दाल हमें ख़रीदना होता है तो क्या हम उसे ख़रीदने के लिए खेत में पहुँचते हैं या फिर मार्केट में पहुँचते हैं, हम मार्केट में पहुँचते हैं। लेकिन सब्जी ये चावल दाल उगता कहाँ पे है, ये उगता है खेतों में, ठीक है। तो ये जहाँ उगता है वहाँ से मार्केट कैसे आता है, ठीक है। उसी तरीके से जब हमें कुछ जैसे प्लास्टिक का मग खरीदना है या फिर बाल्टी खरीदनी है, उसको खरीदने के लिए हम कहाँ जाते हैं, दुकान जाते हैं या फिर उस फैक्ट्री में जाते हैं जहाँ पे वो बनता है। ऑफ कोर्स हम कहाँ जाते हैं, दुकान जाते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये सब सामान जो है वो दुकान आता कैसे है, गॉट इट। तो पहला है जो प्रोडक्शन हुआ किसका, मटेरियल्स का। मान लो यहाँ पे बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन हो गया मटेरियल का, अब क्या होगा, यहाँ पे आएंगे ट्रेडर्स। यहाँ पे कौन आएंगे, होलसेल ट्रेडर्स। ये ध्यान रखना, ये चेन बना भी सकते हो आप लोग, होलसेल ट्रेडर्स यहाँ पे आएंगे और ये प्रोडक्शन, ये जो प्रोड्यूस गुड्स हैं इनको ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में खरीद ले जाएंगे। क्या करेंगे, इनको ये खरीद के ले जाएंगे और ख़रीद के ले जाके अपने गोडाउन में उसे स्टोर कर लेंगे, खरीद के ले जाके अपने गोडाउन में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और इनका गोडाउन कहाँ पे होगा, होलसेल मार्केट। हर शहर में कई सारे होलसेल मार्केट्स होते हैं, डिफरेंट गुड्स के लिए डिफरेंट जगहों पे होलसेल मार्केट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये होलसेलर्स क्या करेंगे, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्रोड्यूस को खरीद के लाएंगे और अपने गोडाउन में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अब ये जहाँ पे इनका गोडाउन होगा वो कोई ना कोई मार्केट होगा, होलसेल मार्केट होगा। अब इन मार्केट्स में इनसे छोटे ट्रेडर्स जाएंगे, इन मार्केट्स में इनसे छोटे ट्रेडर्स जाएंगे और वो छोटे छोटे अमाउंट में क्या करेंगे, इन सामानों को खरीदेंगे छोटे छोटे अमाउंट में। जैसे कि इन्होंने ख़रीदा ढेर सारे अमाउंट में, ट्रक से इन्होंने सामान लाया, लेकिन इनके पास से अब कई सारे व्यापारी जाएंगे। ये तो होलसेल व्यापारी हो गए। अब कुछ होते हैं खुदरा व्यापारी, कुछ होते हैं कितने, कौन, खुदरा व्यापारी। खुदरा व्यापारी जाएंगे और इन होलसेल ट्रेडर्स से सामान खरीदेंगे थोड़े कम अमाउंट में, ठीक है। और ये जो खुदरा व्यापारी होंगे उनको हम क्या कहेंगे, रिटेलर्स। उनको क्या कहेंगे, रिटेलर्स। और ये खुदरा व्यापारी इस सामान को जो वो होलसेलर से ख़रीद के लेके जाते हैं वो अपने दुकान में रखते हैं, चाहे वो स्टॉल पे रखें या फिर अपने इंडिविजुअल दुकान में रखें या वीकली मार्केट में लगा के रखें, ठीक है। अब वहाँ से हम क्या करते हैं, उसे खरीदते हैं। तो हमारे पास ये फाइनली गुड गया, हमारे पास गया तो हम हो गए फाइनल कंज्यूमर, ठीक है। अब प्रोडक्शन यहाँ हुआ था और पहुँचा कहाँ तक, हमारे घर तक,
ठीक है, तो हम हो गए फाइनल कंज्यूमर। हमसे पहले ये किसके पास था? खुदरा व्यापारियों के पास था, तो उनको हम बोलते हैं रिटेलर्स। जो खुदरा व्यापारी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रिटेलर्स। ठीक है, गॉट इट। और होलसेलर किसको बोलते हैं? होलसेल ट्रेडर्स किसको बोलते हैं? जो रिटेलर्स और प्रोडक्शन के बीच में होते हैं उनको होलसेलर बोलते हैं। जहाँ से प्रोडक्शन हुआ वहाँ से सामान खरीद के ला के अपने पास स्टोर करते हैं और वो रिटेलर्स को बेचते हैं। ठीक है, तो होलसेल वाले वो हो गए। ठीक है, अब देखो प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा। तो मान लो कि कोई जैसे कि वेजिटेबल है, वेजिटेबल का बहुत सारा प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, ये वेजिटेबल का बहुत सारा प्रोडक्शन हुआ, तो यहाँ पे कौन आया? होलसेल ट्रेडर्स आए, खरीद के ले गए। तो यहाँ पे इनको मिलेगा, जैसे मान लो परवल है, इनको यहाँ पे मिलेगा 12 रुपये के जी। कितना? 12 रुपये के जी। अब इस रेट से ये मान लो यहाँ पे 100 किलो प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 12 रुपये के जी के हिसाब से खरीद के लेके जाएंगे और अपने गोडाउन में उसे रख लेंगे। ठीक है, अब 100 किलो है तो कितने हो गए? 1200 रुपये का। इसने जो भी होलसेल व्यापारी है वो 1200 रुपये का क्या खरीद के लाया? सब्जी खरीद के लाया। इसको यहाँ पे लाने में क्या हुआ? बहुत सारा खर्च करना पड़ा होगा, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हुआ और उसको स्टोर करने के लिए जो उसने गोडाउन बना रखा है उसका रेंट देना है। तो इन सब को पकड़ के वो सोचेगा कि मैं कुछ फ़ायदा कमाऊं। तो ये कितना फ़ायदा कमाएगा? ये सोचेगा कि मैं जो मेरे पास व्यापारी आएंगे, खुदरा व्यापारी, मैं उनको 15 रुपये के जी के हिसाब से क्या कर दूंगा? बेच दूंगा। ठीक है, तो इसने क्या किया? 15 रुपये के जी के हिसाब से अपना रेट फिक्स कर दिया। यहाँ जो इसका रेट था इस परवल का वो कितना था? 12 रुपये। यहाँ तक पहुँचा तो ये कितने रुपये का हो गया? 15 रुपये। अब यहाँ से कौन ले जाएंगे? खुदरा व्यापारी। कौन ले जाएंगे? खुदरा व्यापारी, जो बाज़ार में रख के उसे बेचते हैं। तो 15 रुपये के जी ये खरीद के ले गए। इसने प्राइस फिक्स किया अपने गुड्स का 15 रुपये। अब ये 15 रुपये खरीदने आए हैं, तो इनको भी कुछ फ़ायदा कमाना है। तो ये जब मार्केट में फाइनली रखेंगे तो ये सोचेंगे कि हम क्यों ना इसका रेट जो है वो 20 रुपये कर दें। इसका रेट जो है परवल का 20 रुपये, जिससे हमें कुछ फ़ायदा हो जाए। तो जब ये फाइनली हमारे पास पहुंचता है तो कितने में पहुंचता है? 20 रुपये में। कितने में पहुंचता है? 20 रुपये में। तो इस तरीके से रेट भी फिक्स होता है। जहाँ पे प्रोडक्शन होती है वहाँ पे रेट बहुत कम होती है और उसके बाद से वो हमारे घर आते आते रेट बढ़ जाती है। ठीक है, सोचो अगर यही रेट जो किसान प्रोड्यूस कर रहा है उसको मिले तो किसान कितना अमीर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए भारत में किसानों की इतनी बुरी हालत है, क्योंकि उनके बीच में जो ये ट्रेडर्स आ जाते हैं ना, होलसेल ट्रेडर्स और खुदरा व्यापारी, जिसके वजह से उनका जो सामान जो फाइनली 20 रुपये में बिकता है वो कितना में बिकता है? वो कितने में बेचते हैं? 12 रुपये में बेचते हैं। उनको कितना लॉस होता है। ठीक है, इसी वजह से भारत में किसानों की बुरी हालत है। लेकिन हालांकि ये हर जगह का यही मार्केट सिस्टम है। ठीक है, इसी तरीके से काम होता है। तो समझ गए आप लोग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, द पीपल बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड द फाइनल कंज्यूमर आर ट्रेडर्स। प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करते हैं सामान को, मतलब चाहे वो फैक्ट्री के हो गए या फिर फार्मिंग के मालिक हो गए, वहाँ से सामान क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और प्रोड्यूस होने के बाद से फाइनली हमारे पास जाता है, कंज्यूमर्स के पास जाता है, जिसे हम घर में उसका फाइनल यूज़ करते हैं। कंज्यूमर्स होते हैं हम। इसके बीच में जो भी लोग होते हैं उन्हें हम ट्रेडर बोलते हैं। अब ये ट्रेडर कई तरीके के होते हैं। ये एक तो होलसेल ट्रेडर्स हो सकते हैं, दूसरे ये खुदरा मतलब रिटेलर्स हो सकते हैं। रिटेलर्स को बोलते हैं खुदरा व्यापारी, और जो बड़े अमाउंट में सामान को प्रोड्यूस को खरीदते हैं उनको बोलते हैं क्या? होलसेल व्यापारी। ठीक है, होलसेल व्यापारी जो होते हैं वो कम मात्रा में सामान नहीं बेचते हैं, और खुदरा व्यापारी जो होते हैं वो कम मात्रा में सामान बेचते हैं। जैसे कि मान लो कोई खुदरा व्यापारी है, वो 50 किलो
सब्जी लेके आया हुआ है, तो उससे आप अगर 1 किलो सब्जी जाके खरीदोगे तो वो आपको आसानी से दे देगा। लेकिन वहीं अगर आप होलसेलर के पास जाओगे और कहोगे मुझे 1 किलो परवल दे दो, तो कहेगा नहीं, हम तुम्हें 1 किलो परवल नहीं देने वाले, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल टू सेल देयर गुड्स इन स्मॉल अमाउंट। ओके, स्मॉल अमाउंट में कौन सेल करता है? रिटेलर। लार्ज अमाउंट में कौन सेल करता है? प्रोड्यूसर। उससे कम लार्ज अमाउंट में कौन सेल करता है? तो होलसेल ट्रेडर्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको आप लोग पढ़ लेना, ये वही बातें लिखी हुई हैं उसमें, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे पूछ लेना। ये है एक दिल्ली की मैप बताई गई है। दिल्ली की मैप जो है इसमें आपको होलसेल मार्केट्स दिया गया। तो आज़ादपुर जो मार्केट है ये सब्जी के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे आज़ादपुर मंडी इसका नाम ही है। यहाँ पे सुबह 3 बजे से ही सारे जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। किस लिए? सब्जी की यहाँ पे बोली लगती है फटाफट। यहाँ पे सब्जी की यहाँ पे बोली नहीं लगती। यहाँ पे जो होलसेल ट्रेडर्स होते हैं यहाँ पे अपना सब्जी स्टोर करके रखते हैं आज़ादपुर में, ठीक है। और उसके बाद से जब स्टोर करके रखते हैं तो जो छोटे मोटे रिटेलर्स होते हैं वो यहाँ पे पहुँचते हैं भोर में, और वहाँ से सब्जी को ख़रीद के लेके आते हैं और अपने रिस्पेक्टिव गलियों में या फिर दुकानों पे उसे बेचने के लिए ले जाते हैं। गॉट इट? समझ गए? उसी तरह दरियागंज, यहाँ पे बुक्स वगैरह बहुत ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पे सस्ते दामों में आपको बुक्स मिल जाएंगे, तो यहीं से बुक्स लोग लेके जाते हैं दिल्ली के और अपने आसपास के दुकानों में बेचते हैं, ठीक है। गॉट इट? आई होप आप लोगों ने ये समझा होगा। तो सारे शहरों में क्या होती है? होलसेल मार्केट्स होती है। दिस इज़ वेयर द फर्स्ट, यहाँ पे देखो होलसेल मार्केट क्या है? दिस इज़ वेयर गुड्स फर्स्ट रीच। होलसेल मार्केट ही पहला जगह होता है जहाँ पे जो गुड्स होती हैं जिनका प्रोडक्शन होता है वो पहले पहुँचती हैं। उसके बाद से वो कहाँ पहुँचेंगी? रिटेलर्स के पास, और फिर हमारे घर में पहुँचेंगे। गॉट इट? ओके। यहाँ पे एक सब्जी का वो दिया हुआ है, आफताब की स्टोरी है। ये 2 बजे क्या करता है? 2 बजे अपने वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पे सब्जी मिलनी होती है, जहाँ सब्जी लेना होता है। वहाँ पे ऑक्शन होता है, मतलब बोली लगती है कि सब्जी के लिए क्या कितना पैसा आप दे रहे हो। और ऑक्शन करने के बाद से वो सब्जी को अपने घर लाता है, अपने मतलब गोडाउन पे लाता है। गोडाउन पे लाने के बाद से जो छोटे मोटे रिटेलर्स होते हैं वो उसे ख़रीद के ले जाते हैं एंड देन हमारे घरों में पहुंचता है। ये तो ईजी है, आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने समझा चेन ऑफ मार्केट और प्राइसिंग के बारे में। प्राइसिंग हालांकि नहीं था, लेकिन मैंने आपको बताया प्राइसिंग कैसे फिक्स किया जाता है, ठीक है। तो आप होमवर्क में क्या करोगे? आपको बताना है व्हाट डू यू मीन बाई। पहला क्वेश्चन सुन लो। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाई ट्रेडर्स? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स? ओके। व्हाट डू यू मीन बाई रिटेलर्स? व्हाट डू यू मीन बाई रिटेलर्स? ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाई फाइनल कंज्यूमर? ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाई फाइनल कंज्यूमर? गॉट इट? समझ गए? और उसके बाद से कुछ क्वेश्चन जो आपके बुक में दिया हुआ है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वो कर लेना। लाइक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिस वन, कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट ऑफ वीकली मार्केट एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ये भी बता देना है, इसमें कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना है। इजी है काफ़ी। ओके, यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो आप, ये टेबल दिया हुआ है यहीं पे बना सकते हो। ओके, एक्सप्लेन हाउ द चेन मार्केट, ये वाला आपको करना है। व्हाट पर्पस डज इट सर्व, ये क्या पर्पस सर्व करता है बताना है, ठीक है। तो ये क्या करता है? हमें ईज़ प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर हमें सब्जी खरीदना है तो हम खेतों में जाने लगे तो हो गया हमारा काम, ठीक है। तो सब्जी हमारे यहाँ चल के आती है, इसमें मार्केट चेन का बहुत बड़ा रोल होता है। गॉट इट? ओके, चौथा और पांचवा, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, ठीक है। ऑल पर्सन हैव इक्वल राइट्स टू विजिट एनी शॉप इन मार्केट प्लेस, ठीक है। ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। वही वाला बात है,
वो जो गार्ड था ना वो उन दोनों को रोकना चाहता था, बिकॉज काफ़ी महंगी सामान थी और उसे लगा कि ये नहीं खरीद पाएंगी, तो वो रोकना चाहता था। लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते हो। कोई भी इंसान, अगर आपने शॉप खोल रखा है, चाहे आपका कितना भी महंगा शॉप हो और वो कितना भी गरीब इंसान हो, वो वहाँ पे जाके प्राइस देख सकता है, सामानों को देख सकता है। आप, ये उसका अधिकार है, ठीक है। तो इसको आप अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना ऐसे करके, ठीक है। ओके। और ये पांचवा पांचवा करने की कोशिश कर रहा, नहीं होगा तो मैं अगले क्लास में पढ़ाऊँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। अगर कुछ आपको बताना हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। चलो एक चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना, ये हम फार्मिंग वगैरह के बारे में बोल रहे हैं, तो आपको मैं 3 मिनिस्ट्री के बारे में पूछ रहा हूँ। पहला बताना आप, हमारे यहाँ के जो फार्मिंग मिनिस्टर हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है। फिर बताना है, छोटे फैक्ट्रीज़ की बात हुई है यहाँ पे, तो एमएसएमई मिनिस्टर कौन है, मिनी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ये एक मिनिस्ट्री है, इसके मिनिस्टर कौन है, ठीक है। एमएसएमई के मिनिस्टर कौन है। और तीसरा क्या बताओगे, चलो 2 ही बताना, ठीक है। इनके मिनिस्टर्स का नाम बताना, एग्रीकल्चर मिनिस्टर और एमएसएमई मिनिस्टर कौन है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।